السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے طور پر چوتھی بار حلف لینے والے نارا چندر بابو نائیڈو کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ چوتھی بار چیف منسٹر بننے کی خواہش رکھتے ہوئے وہ سمہاگری سری لکشمی نرسمہا سوامی ابراہیم پٹنم سے سری یادگیر گٹا لکشمی نرسمہا سوامی مندر کی پد یاترا پر جا رہے ہیں۔ تلگو دیشم کے کارکنوں کے ساتھ اور تلگو دیشم کے کارکنوں اور ریاست آندھرا کے لوگوں کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مہا پد یاترا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 70 کلومیٹر برائے کرم پد یاترا میں میرے ساتھ آئیں۔ دلت حقوق جدوجہد سمیتی تلنگانہ ریاستی سطح کے سیاسی تربیتی کلاسز جون کے 18، 19، 20 کو ہوگی۔ یادگیر گٹا میں منعقد ہونے والے سیاسی تربیتی کلاسوں کے پوسٹر کی نقاب کشائی اعزازی صدر کے اسٹورنم، ریاستی چیف سیکرٹری ماروپاکا انل کمار، ریاستی نائب صدر اے سہدیو، ریاستی اسسٹنٹ سیکرٹری جے کمار نریندر اور راجندر نے حمایت نگر راجیو بہادر ہال میں کی ہے۔ بعد میں اس دوران ماروپاکا انل کمار نے کہا کہ آزاد ہندوستان میں دلت تمام شعبوں میں پیچھے ہیں۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹری کوتاگوڑم کے ایم ایل اے کونانینی سامبا شیوا راؤ، ڈپٹی سی ایم بھاجی وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، وزیر ریونیو پونگولیٹی سنواس ریڈی، وزیر زراعت پونگولیٹی اور دیگر اس موقع پر بیرج کے کاموں کا معائنہ کیا۔ تلنگانہ ہینڈلوم ورکرز یونین کے ریاستی اعزازی صدر تاتی پامولا وینکٹ راملو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام بنکروں کو کل وقتی کام فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں، جس کی وجہ سے انہیں روزگار میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بنکروں کے بنے ہوئے کپڑے کوآپریٹو سوسائٹیز میں دستیاب نہیں ہیں اور حکومت سے درخواست کی کہ وہ سب خریدے اور مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے الیکشن نہ کروا کر کوآپریٹو کو کمزور کر دیا۔ اس حکومت نے خود کو اشتہارات تک محدود نہیں رکھا اور وہ مرکزی حکومت پر جی ایس ٹی کے بغیر مزدوروں کو 2 لاکھ قرض دینا چاہتی ہے۔ سی پی آئی تلنگانہ ریاستی سیکرٹری ایم ایل اے کونانینی سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ اگر ملک میں خواتین کی سیاسی شرکت میں اضافہ ہوگا تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی اور ایک مضبوط جمہوریت خواتین کے حقوق کی حمایت کرے گی۔ انڈین نیشنل ویمنس فیڈریشن اور تلنگانہ اسٹیٹ کا ایک بڑے پیمانے پر اجلاس راج بہادر گوڑ ہال، حمایت نگر، حیدرآباد میں فیڈریشن کی ریاستی صدر اسٹیلا سریجنا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کونانینی سامبا شیوا راؤ اس دوران مہمان خصوصی تھے اور این ایف آئی ڈبلیو کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر رجنی اس میٹنگ میں مہمان خصوصی رہے۔ مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے بڈی باٹا پروگرام کا افتتاح کیا اور نامپلی اسمبلی حلقے کے ملے پلی، نامپلی مارکیٹ اور وجے نگر کالونی میں سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو یونیفارم نوٹ بکس تقسیم کیے۔ ظفر خان ملے پلی کارپوریٹر، محمد قاسم وجے نگر کارپوریٹر، محکمہ تعلیم کے افسران، اسکول مینجمنٹ اور مجلسی ٹیم و خیر خواہ موجود تھے۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کلکٹر صاحب کے ساتھ دورہ کیا تو انہوں نے خود بذات خود دیکھا کہ ہمارے اسکول میں جو ہے فوری طور پر جو ہے مینٹیننس کا کام بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے اور اس کو انہوں نے سینکشن کروایا اور اپنی ذاتی نگرانی میں جو ہے مکمل کیا۔ خاص طور سے ہمارے اسکول میں پلاسٹرنگ، مرمت اور داودوزی کے جو کام تھے بہت بڑے تھے۔ ساری عمارت کا جو ہے کلر مدھم ہو چکا تھا اور ایک عرصہ ہو گیا تھا اس کی مینٹیننس ہو چکے۔ ابھی جیسا ہم پوچھے تو 22 سال ہو چکے تھے اور دونوں بلاکس کے واش رومز کی مرمت جو ہے ضروری تھی۔ ٹیوب لائٹس نہیں تھے، فینس نہیں تھے، باؤنڈری وال کی مرمت ضروری تھی اور اسکول کی ڈرینیج لائن مکمل طور پر بند تھی۔ تو اس لائن کو جو ہے بڑے پائپس کی مدد سے جو ہے نئی لائن ڈالی گئی اور دونوں بلاکس کے ٹوائلٹس کو جو ہے پانی کی نکاسی کے لیے جو ہے خاص انتظام کیا گیا۔ ٹوائلٹس میں روشنی کا انتظام کیا گیا، چھت پر واٹر پروفنگ کی گئی، پرنالوں کو تبدیل کیا گیا۔ ٹوائلٹس میں جو ہے رننگ واٹر کے لیے نئے ٹینک لگائے گئے، نئے پائپ لائنس لگائے گئے اور ان کو دوبارہ جو ہے کارکر بنایا گیا۔ کئی کمرے جات میں دروازے نہیں تھے اور کئی جو ہے منہدم تھے تو نئے دروازے لگائے گئے اور پرانے دروازوں کی جو ہے ٹھیک کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے ان کاموں کے لیے کثیر رقم درکار تھی اور یہ اسکول اور ہمارے محکمے کے بجٹ میں ناممکن تھا۔ ایم ایل اے صاحب نے اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت
इन सब को अंजाम दिया, हम उनके तहे दिल से मशकूर है। इसके लिए स्कूल के तमाम तलबा, वालिदैन और तमाम असातिज़ा भी आपके मशकूर और ममनून हैं। स्कूल में तलबा की तादाद हाई स्कूल में 200, प्राइमरी स्कूल में 200 और तेलुगु मीडियम स्कूल में 100 के करीब है। इस तरह तीनों स्कूल की जुमला तादाद 500 के करीब है और इस कैंपस में 500 तलबा जो है ज़ेर तालीम है और प्राइमरी स्कूल में उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। एमएलए गोंडू शंकर के ज़रिए एहतमाम कैंटीन जो बाकायदगी से सैकड़ों लोगों की भूख मिटा रही है 500 दिन में दाखिल हो गई और यहाँ पर शहर के एडोला, राटला, कडाली और ओल्ड बस स्टेशन के इलाकों में गोंडू शंकर की जानिब से चलाई जाने वाली कैंटीन अपने दिनों पर पहुंच रही है। शंकर की तरफ से शुरू की गई कैंटीन गरीबों की हालत-ए-जार को जानने वाले इंसान के तौर पर अपनी इंसानियत का मुजाहरा करते हुए गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी है और उनकी भूख मिटा रही है। सतीश मालविका कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि बीआरएस कायदीन जिन्होंने 10 साल तेलंगाना पर हुकूमत की, वो कांग्रेस हुकूमत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बालका सुमन सीएम पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में हलफ लिया। रेड्डी और चंद्रबाबू मुल्क में काम कर रहे हैं। वो तनकीद कर रहे हैं कि तेलंगाना को आंध्रा के हवाले किया जा रहा। तकसीम के वक्त आंध्रा के लोगों ने 7 मंडल देने का मुतालबा किया जो पोलावरम के नीचे सैलाब में आ जाएंगे। भारत में बर्ड फ्लू का दूसरा केस सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंकशाफ किया कि कोलकाता का एक 4 साल बच्चा बर्ड फ्लू से मुतासिर हुआ। हिंदुस्तानी नजाद एक 4 साल बच्चा ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस बीमारी का शिकार हुआ है। मेडिकल टेस्ट से पता चला कि बच्चा बर्ड फ्लू वायरस से मुतासिर था। इसके तकरीबन 3 माह बाद आलमी इदारे सेहत भारत के और महकमे सेहत के जराये के मुताबिक बच्चा गुज़िश्ता फरवरी में अपने वालिदैन के साथ कोलकाता आया था। बच्चे का खानदान फरवरी के आखिर में सिंगापुर के रास्ते ऑस्ट्रेलिया वापस आया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद बच्चे को बुखार हो गया। डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे के खून का नमूना बर्ड फ्लू वायरस के लिए मुस्बित पाया गया। दरगाह हजरत यूसुफैन बाबा और हजरत शरीफ बाबा के 324वें उर्स शरीफ पर वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक मेंबर टीएस वक्फ बोर्ड और रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की क़ियादत में एक वफ्द मोहम्मद वली अहमद शरीफ, मोहम्मद गौस पाशा एडवोकेट, मोहम्मद अब्बास एडवोकेट के साथ शेख अहमद और दीगर ने दरगाह शरीफ आस्थाना बुजुर्गान दीन शहनशाह दक्कन हजरत सैयद शाह यूसुफ बाबा और हजरत सैयद शाह शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देते हुए गिलाफ मुबारक और चादर गुल पेश किया और रियासत तेलंगाना की कामयाबी और अमन वो आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की ताकत के लिए दुआ की। हमने 324वें उर्स पर हाजिरी दी और यहाँ पर बड़ी अकीदत के साथ मुल्क भर से, बैरूनी मुल्क से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी दरगाह में आकर गिलाफ मुबारक को पेश किया और चादर गुल पेश की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह इस अल्लाह के नबी के सच्चे में इस बुजुर्ग के साए में अल्लाह ताला मुल्क से तमाम बीमारियों का खात्मा कर दे और जुम्ला बीमारों को अल्लाह सेहत दे और मुल्क को तरक्की दे। हमने यहाँ पर हमारी जो भी मुरादें हैं यहाँ पर पेश की। इंशाअल्लाह हम यहाँ के मुत्तकी है क्योंकि यहीं से ही अल्लाह ने जो भी लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी करता है। हमारा ये अक़ीदा है, इंशाअल्लाह हम आगे भी आते रहेंगे क्योंकि हमने तेलंगाना तहरीक को भी यहाँ से ही आगाज़ किया था। अल्लाह ने आज अलहदा रियासत कायम कर दी। इंशाअल्लाह ये बुजुर्ग की बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो भी इनके घर पर आता है वो अपनी मुरादों को पा लेता है। इंशाअल्लाह हमारी भी मुरादें भी हमने भी रखी है। अल्लाह ने उसके हबीब के सदक़े में इस बुजुर्ग के साए में पूरी की है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे और सबको पूरे हैदराबाद को, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क की तमाम अक़ीदतमंदों को मैं 324वें उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और लियाकत हुसैन मजाज ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने ईदगाह 7 गुंबज और ईदगाह मीर आलम का दौरा किया और वहां का मुआयना किया। कौसर मोइनुद्दीन एमएलए कारवान और जाफर हुसैन मेराज एमएलए याकुतपुरा और पुलिस जेएचएमसी आरएंडबी वाटर वर्क्स और बिजली के महकमों वगैरह के दीगर ओहदेदारों के साथ
ईदगाह मादाना पेट के लिए भी जरूरी हिदायत के तहत मुआयना करते हुए वहां का जायजा लिया और 17 जून को ईद उल अजहा की नमाज के लिए अवाम के लिए इंतजामात और मुनासिब सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। रियासती वजीर सेहत खानदानी बहबूद साइंस व टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में रियासत में ब्लड बैंक्स की कारकर्दगी, इंतजाम और मजबूती से मुतल्लिक एक आला सतह जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 14 ब्लड बैंकों के अज्जा को हुकूमत की तहत बेहतर कारकर्दगी के साथ अपग्रेड करें। जायजा में अहदेदारों से तेलंगाना रियासती हुकूमत तिब्बी सेहत व खानदानी बहबूद के महकमों के ज़रिए एहतमाम चलने वाले ब्लड बैंक 63 की कारकर्दगी और इंतजाम के बारे में पूछा गया। सालारजंग म्यूजियम कॉन्फ्रेंस हॉल हैदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग बकरीद फेस्टिवल 2024 जिसमें अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के और MLA और मुस्लिम बल्दिया और दीगर भी मौजूद रहे और इसमें शिरकत करते हुए ईद के इंतजामात के ज़िमन में तबादला ख्याल किया गया और हैदराबाद सिटी आई और पुलिस कमिश्नर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। दानम नागेंद्र ने जी नागभूषणम मामिदी नरसिंह राव की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। भैंसा में डबल बेडरूम मकानात के लिए खुरंदाजी में मुंतखब 440 मुस्तकीन अपने हक व इंसाफ के लिए गुज़िश्ता दिनों कई दफा RDO दफ्तर के चक्कर लगाकर गुज़िश्ता रोज डबल बेडरूम मकानात पहुंचकर एहतजाज किया और पारदे बाईपास शाहरा पर रास्ता रोककर शदीद एहतजाज किया, जिस पर भैंसा RDO कोमल रेड्डी और तहसीलदार प्रवीण कुमार मुकाम एहतजाज पहुंच गए और एहतजाजियों को डबल बेडरूम मकानात में ज़र इल्तवा कामों से वाकिफ करवाते हुए बरकी, आबी सरबराही और सैनिटेशन व दीगर कामों को मुकम्मल करके आइंदा 15 दिनों में खुरंदाजी में मुंतखब मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का तयखुन दिया, जिस पर रास्ता रोको एहतजाज खत्म करते हुए मुंतखबा मुस्तकीन डबल बेडरूम मकानात में जमा हो गए। లక్కీ డ్రాలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇప్పుడు మేము వాళ్ళకి ప్లాట్ అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బెనిఫిషియరీ సెలెక్షన్ గ్రామ సభ అది కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దాని బేస్ ప్రకారం అది మన మున్సిపల్ వార్డులో మన తీర్మానం కానీ అయినాయి కాబట్టి దాని క్రమంగా మేము వాళ్ళకి పొజిషన్ అనేది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. हलके के MLA गोंडू शंकर ने खानसाज के हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद तरक्की और मसाइल को हल करने पर तवज्जो दी है। ICC इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए इक़दाम कर रही। इसी के तहत वो हलफ लेने के बाद जिले मरकज पहुंचे और जिले के आला अहदेदारों से बज़ात खुद मुलाकात की। उन्होंने श्रीकाकुलम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर तमीम अंसारियत से शहर की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। CPI के नारायणा ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को मुबारकबाद, जिन्होंने जगन बरकशना स्कीम का अहद किया। जगन ने तस्दीक नहीं की, रियासत के तमाम किसानों ने वहां पर एहतजाज भी किया था और आखिरकार जगन की हुकूमत हार गई। उन्होंने कहा है कि मैं वो वीडियो जारी कर रहा हूं जो पिछले साल दिसंबर में जारी हुआ था कि जगन बरकशना स्कीम बिल्कुल इसी तरह मुनद्दिम हो जाएगी जिस तरह तेलंगाना में KCR के धरानी బోపాడం के साथ हुआ था। పట్టాదారు పాస్ పుస్తకము అధికారికి చూపించిన అవసరం లేదు అంటే ఇది బోగస్ పత్రం, దేనికి పనికిరాదు, నాల గీసుకుంటే కూడా పనికిరాదు, బొమ్మ చేసి కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మొత్తానికి ఇది పంపిణీ చేశాడు. ఇది అసలు ముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు తెచ్చింది ఇది పాస్బుక్. ఇది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చాక అది ఇచ్చింది పాస్బుక్. ఇది దీనిలో అన్ని రకాల హక్కులు ఉన్నాయి. పాస్బుక్ తీసిస్తాను అన్ని వ్యాలిడ్, కానీ ఈ పాస్బుక్ తీసుకొస్తే జగన్ బొమ్మ కనిపిస్తుంది తప్పితే దీనికి ఎందుకు వ్యాలిడ్ లేదు. బ్యాంకులో లోన్ లేరు, దీనికి హక్కు పత్రం రాదు, మీకు రైట్ రాదు, ఊరికి విగ్రహం లాగా పెట్టుకోవచ్చు. దాంతోపాటు స్త్రీ సర్వే అని సర్వే చేశాడు, సెటిల్డ్ సర్వే. ఒక్కొక్క దీనికి ఎన్ని బండ్లు ఉన్నాయి చూడండి, చాలా ఫినిష్ చేసిన నేను జగన్ భూ పథకం పెట్టాడు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ సర్వే నెంబరు ఈ సర్వే పక్కన ఉంటాయనుకోండి, ఈ నారాయణ బలన్పూర్ నెంబర్ 2 సర్వే నెంబరు అది జాయింట్ పత్రం ఇచ్చేసాడు. జాయింట్ పత్రం అంటే ఏంటి, భూ సర్వే నెంబర్ 1 నాది అయితే దాన్ని జాయింట్ పత్రంగా భూ నెంబర్ 5, 6, 7 ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు కొట్టాడుకో సావరా, ఇది రాదు.
ఈ విధంగా అనేక తప్పు తరగలతోటి భూరక్ష పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ బండలు వేశాడు, ఈ పుస్తకం వేశాడు, దీనికి సెటిలైట్ పథకం వేశాడు. ఇది ఇట్లాంటిదే ఒక తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కూడా ధరణి చేశాడు. ఆ ధరణిలో ఎట్టుందంటే వినియోగదారుల హక్కు కనపడలేదు, అనుభవదారుల హక్కు కనపడలేదు. దానివల్ల ఏం చేసిందండి, అనుభవించాల్సిన భూమి కాస్త భూస్వామికి వెళ్ళిపోయింది. అదే దెబ్బతీసింది, కేసీఆర్ అదే దెబ్బతీసింది. ఇప్పుడు జగన్ కూడా ఈ భూరక్ష పథకం మీద దెబ్బతీయబోతుంది. దీనివల్ల రైతుకి ఉపయోగం లేకపోగా అనేక రకాల డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేసినాయి. బండలు కనిపిస్తాయి, పుస్తకం కనిపిస్తుంది, ఇది శిలాపథకం లాగా ఉంటుంది, శ్మశానం రాసి పథకం లాగా ఉంది తప్ప ఇది కాదు. ఇదే బండలే రాబోయేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి శిలాపథకంగా మారిపోతుంది, శ్మశానం పనికొస్తున్నటువంటి కార్యం కాదు. ఇదే పథకమే ఆయన ఓడించబోతుంది. निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मंदा मकरंदा ने कहा है कि बल्दिया डिवीजन नंबर 58 आजम रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े क्लोड्स तामीर करके गंदे पानी की निकासी के दरीना हल तलब अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। इस क्लोड्स की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है। महकमे R&B के तहत आजम रोड पर क्लोरेट्स की तामीर और तामीर इजाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। निजामाबाद कमिश्नर बल्दिया मंदा मकरंदा ने बल्दिया डिवीजन 58 सीनियर कॉर्पोरेटर में खुदूस की मौसर नुमाइंदगी और क्लोरेट्स की अदम तामीर की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा होने और अवामी व ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने के पेश नजर कमिश्नर बल्दिया मंदा मकरंद बल्दी ओहदेदारों और असिस्टेंट इंजीनियर बल्दिया सैयद इनायत करीम, इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली और नारायणा सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत के हमरा आजम रोड के मखदूश क्लोरेट्स का मुआयना किया। बाबू जितना बंदा जितना भी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट और आकर्षा हॉस्पिटल सेंटर फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी 15 जून 2024 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पैदाइशी नुकाए से चलने वाली चोटों, हादसात और ट्यूमर की वजह से पैदा होने वाली जिस्मानी खराबियों के लिए दोबारा तामीराती सर्जरी के लिए एक मुफ्त मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद कर रहा। अमले और जरूरतमंद मरीजों के लिए फलाही इक़दाम के हिस्से के तौर पर यानी आम आवाम के साथ साथ हैदराबाद सिटी पुलिस के अमले और अफसरान के अहल खाना या रिश्तेदार मेल ID के जरिए इस दफ्तर से मुफ्त खिदमात का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्जी चमक के बाद जनूब मगरबी सिमत से बल्दी के इलाके तक बारिश पहुंच रही। अगले 2 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश गर्ज चमक के साथ बारिश देखी गई। राजेंद्र नगर, खैरताबाद, चारमीनार, एबड, सिकंदराबाद के इलाके में बारिश का तजुर्बा देखा गया। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की हिदायत पर ईद उल अजहा की तकरीबात से पहले मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के CEO, WB के चेयरमैन और TGSPDCL के अहदेदारों के साथ कारवान हल्के में बड़ी ईदगाहों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कारवान MLA ने मुतल्लिका अफसरान को जंगल झाड़ियां काटने, CCBT सड़कों की सफाई और फर्श बनाने, व्हाइट वॉश, कैचपेट के कामों, सेप्टिक टैंकों के कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। जहां GHMC के इलेक्ट्रिसिटी विंग के अहदेदारों ने तमाम ईदगाहों के अहाते को रोशन करने का तयख्खुन दिया। वहीं वाटर बोर्ड मखसूस जगहों पर अहाते में वजू के लिए पानी के अलावा पीने के साफ पानी का इंतजाम करेगा। बाद में कारवान के MLA ने जोनल कमिश्नर के साथ CC रोड सेवरेज बॉक्स टाइप ट्रेन के तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।